Good code is like a joke. If you have to explain it, it's not that good. With this code, I, Kritika Kumari, welcome you all to the third season of the Code Up Show. So before you introduce our guest, Vipin sir, I would like to ask you guys, how many of you guys heard about the Code Up Show before? Yeah, the second years, right? Okay. So I like to introduce the Code Up Show first. So Code Up Show is trying to be the bridge between students and corporate world. So I'm sure most of us have heard stories from our siblings, relatives in corporate, and even searched over the internet कि what corporate life is like, right? कि क्या होता है corporate में, what is like corporate culture, कौन सी कंपनी में अच्छा culture है ना? तो उसके बावजूद भी I am sure despite that many of you have many unanswered questions. Yes? Like कि कैसे करना है? How should we prepare for the jobs? When should we start preparing for the jobs, right? Second year में बहुत ज़्यादा ये रहता है क्वेश्चन कि कब शुरू करें प्रिपेयर करना. So to have that clarity, we invite some professionals from the industry with their experiences and their journey. We'll learn and navigate our own path through the corporate world. सो बी अटेंटिव थ्रू आउट द शो, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि ये नॉलेज अपन यूट्यूब से भी बाद में ले लेंगे थर्ड ईयर में, नहीं मिलती भाई ऐसी नॉलेज यूट्यूब पे, इंटरनेट पे थ्रू आउट आप सोचो ये सेशन देख लेंगे, नहीं मिलती. सो ट्राई टू ग्रैब एज मच एज नॉलेज एज यू कैन टुडे. ओके, वेलकम टू द कोड अप शो गाइज. So, today, the guest that we have is a leader in his field. He is testing head and project delivery manager at MetaCube Software Private Limited. Along with that, he has also been a conference speaker for more than 12 years. So, let's give a big round of applause for Vipin Jain. Thank you. Thank you. Thank you so much, sir, for accepting our invitation, and we heartily welcome you to the Code Up Show. Thank you for invitation. Thank you. So, before we move ahead, we have a guess the lie quiz for you. So There will please, be everybody scan. 3 statements. You have to guess which one is the lie about Mr. Vipin sir. Okay? We also have few chocolates if you guess correctly. So there are three options. First is I have visited 22 countries. Second is I'm an encyclopedia of 2000 before 2000 era songs, and I'm an early riser. So what do you think? Which is lie about Vipin? Good, yeah. 22 countries. Wow. Okay, so time out. And most of you have guessed that Vipin is is not an early riser. So Vipin, which is the false about you? Which is the lie? Which is the lie? Yeah, I'm an early riser. you are not an early riser. I'm not an early riser. Okay, so audience, बहुत सही guess किया है आपने. Thank you. In, So in fact, when Shubham messaged me कि मैं 9:20 पे आपको लेने आ जाऊंगा, that was a challenge for me. 9:20 मतलब इतना सुबह कौन आता है, वो भी सैटरडे को. But then I realized बहुत सारे लोग उठते हैं, मैं नहीं उठता. so is it true about the songs? Yeah. So हो जाए कुछ थोड़ा थोड़ा. नहीं, मेरे को गाना आता नहीं है, मैंने ये नहीं लिखा है यहाँ पे. Okay, Okay, so Encyclopedia doesn't sing. अभी बाद में. 90s kid. Yeah, आराम से, free time. okay, so let's move on to his journey. So Vipin, please tell us about your journey from campus to corporate. Okay, so I didn't have a campus like you guys have, right? Because you all are doing BTechs or BE, right? So school से engineering and engineering से college, that's a very, I would say, straightforward journey. So surprisingly, एक और statement यहाँ हो सकता था lies और उसमें. So I am from a biology background. So I did my graduation in botany, chemistry, zoology.
अब हमारे टाइम में नीट नहीं होता था जैसे अभी नीट होता है, सो वी डिडंट हैव नीट. हमारे टाइम में पीएमटी होता था, प्री मेडिकल टेस्ट. दैट्स इफ यू क्लियर दैट तो राजस्थान की सीट्स के लिए यू आर एलिजिबल. अच्छा, सॉरी फॉर माई थ्रोट, थोड़ा सा आज बैठा हुआ है, बट स्टिल. तो पीएमटी दिया फर्स्ट अटेम्प्ट, 12th के बाद नहीं हुआ. अनफॉर्चुनेटली स्कूल में मैं टॉपर चलता था, सो आई एम फ्रॉम सेंट जेवियर्स. नहीं हुआ तो देन इट वाज अगेन अ बिग बिग प्रेशर. सोशल प्रेशर बहुत होता है. डजेंट मैटर उस समय सोशल मीडिया था या नहीं, नहीं था. लेकिन वो पास वाले अंकल और पास वाली आंटी और शर्मा जी का बेटा एंड गुप्ता जी के बेटी, जब उन सबका सिलेक्शन होता जाता है एंड आपका नहीं होता, एंड ऑल दोज पीपल हु एक्चुअली कॉपी योर होमवर्क्स एवरी डे, फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गए, कोई एसएमएस मेडिकल कॉलेज में निकल गया, कोई एम्स जा रहा है, एक एएफएमसी होता है, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, इफ़ यू नो, पुणे में, उसका अलग एग्जाम होता था, एम्स का अलग एग्जाम होता था. एंड पीपल आर गेटिंग सेलेक्टेड एवरीवेयर. एंड देन देर इज अनदर गाय जो अपने घर में बैठा है मेरे जैसा, नॉट गेटिंग सेलेक्टेड एनीवेयर. देन आई वेंट टू महाराजाज कॉलेज, क्योंकि कुछ तो करना है, बीएससी तो करना पड़ेगा, ज्वाइन कर लिया. बट देन यू रियलाइज वहाँ पे जितने भी हैं दे ऑल आर बेसिकली, आई वोंट से फेलियर्स, बट दे couldn't क्लियर देयर एग्जाम्स. एंड हमारे टाइम में यू डोंट हैव एनी डेजिग्नेटेड जॉब पाथ्स, एक्सेप्ट अगर आप इंजीनियर नहीं हो, अगर आप डॉक्टर नहीं हो, अगर आप सीए नहीं बनना चाह रहे हो, एमबीए नहीं करना चाह रहे हो, या फिर आप सिविल सर्विसेज, दैट्स इट. देयर वर नो क्रिएटिव आर्ट्स, देयर वाज नो लिबरल आर्ट्स, देयर वाज नो फैशन, देयर वाज नो कम्युनिकेशन, देयर वाज नो शोज लाइक कोड अप शोज. यूट्यूब, अभी आपने बोला कि अभी नॉलेज ले लो, बाद में यूट्यूब देख लेना, ये तो आपको चॉइसेस हैं. यूट्यूब नहीं तो ब्लॉग्स, ब्लॉग्स नहीं तो इंटरनेट, ये नहीं तो चैट जीपीटी, एआई. हमारे कुछ ऐसा नहीं था लिटरली, बिकॉज देयर वाज नो इंटरनेट, देयर वाज नो फोन्स, सो यू डोंट हैव दैट पावर जो अभी आप लोगों के हाथ में. सो आई जॉइन महाराजाज कॉलेज. एक साल किया, अगले साल तो पीएमटी में निकलना ही निकलना. एक और अटेम्प्ट, आई कुडंट गेट अगेन थ्रू दैट. फिर मैंने कहा अब क्या करेंगे. सो ओनली जॉब लेफ्ट इफ़ यू आर नॉट इन एनी अदर स्ट्रीम, आप कोई बिजनेस हाउस को ज्वाइन कर लो एज अ टाइपिस्ट, एज अ शॉर्ट हैंड गाय, या आप अगर बिजनेस माइंड है तो बिजनेस खोल लो, राइट. सो अब मैंने कहा जब शॉर्ट हैंड ही करना है और टाइपिस्ट ही बनना है, सो जयपुर में एक नया नया कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ओपन हुआ था, सिस्टम्स स्कूल ऑफ कंप्यूटिंग, सीएससी, बिरला मंदिर के जस्ट बैक साइड में. तो आई थिंक मेरे डैड का ऑफिस उसके थोड़ा पास में ही था, वो रोज़ जाते थे. माई डैड वॉज अ कम्प्लीटली नो इन कंप्यूटर साइंस, मतलब उनको कुछ नहीं आइडिया था इन चीज़ों का. एंड हाउ कैन यू एक्सपेक्ट, जब हमें नहीं आइडिया था स्टडिंग इन जेवियर्स, तो वो तो और एक जनरेशन पीछे थे. बट उनको लगा यहाँ पे रोज़ कुछ बच्चे आते हैं स्कूटर्स वगैरह पे, कुछ करते होंगे, आई डोंट नो, और निकल जाते हैं, तो मैं मेरे बेटे को भी वहाँ डाल देता हूँ. आई थिंक वन ऑफ द वाइजेस्ट डिसीजन ही टुक टू पुट मी इनटू दैट इन कोचिंग. और तभी आई वाज लाइक अरे नहीं नहीं, मेरे को तो मेडिकल में जाना है, क्योंकि अब है ना एक वो प्राइड का पॉइंट बन चुका था, क्योंकि सेकेंड अटेम्प्ट में भी जब नहीं हुआ तो यार कहीं तो प्रूव करना पड़ेगा. अच्छा, ऑन टॉप ऑफ दैट माई ब्रदर वॉज ऑलरेडी इन MNIT एट दैट टाइम, तब MREC होता था, एंड ही स्कोर्ड व्हाट आई थिंक 49th रैंक ऑल अक्रॉस राजस्थान एंट्रेंस में. अब वो और एडेड प्रेशर हो गया कि एक बेटा हो गया, दूसरा क्यों नहीं हो रहा, एक हो गया, दूसरा क्यों नहीं हो रहा. तो मैंने कहा कुछ तो करता हूँ, एक डिप्लोमा की तरह 6 महीने का कोर्स ज्वाइन किया. एंड आई वॉज जस्ट टॉकिंग आउटसाइड आपके JC बोस हॉल में 94 में, व्हेन आई स्टार्टेड एज अ स्टूडेंट 30th September 94 इन कंप्यूटर साइंस. कोई ये बताने वाला नहीं था, नो ब्लॉग्स, नो यूट्यूब, नो पर्सन. इवन जिन्होंने कोर्स स्टार्ट किया था, मिस्टर केशव शर्मा, वो तक ये नहीं बता सकते थे कि 2024 के एंड में या 25 के बिगनिंग में एक शो हो रहा होगा, कोड अप शो, जहाँ पे मैं स्टेज पे बैठा हूँगा, वी विल बी टॉकिंग अबाउट AI एंड पता नहीं क्या क्या, टेस्ला कार्स. मैं 22 कंट्रीज घूम चुका हूँगा जब तक, फॉर ऑल माई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज. और कंप्यूटर्स इज समथिंग जो मेरा क्या सारी दुनिया का कैरियर एंड लाइफस्टाइल ही चेंज कर देगा. नो वन वॉज एबल टू टेल दैट. सो इट वॉज अ प्योर गैम्बल. एक किसी जुआ खेला था मेरे पापा ने, लकीली वो चल गया, वो दांव चल गया, और माई लॉस्ट कॉन्फिडेंस केम बैक, सिस्टम्स बढ़ता गया. वी थॉट के मैं 6 महीने का कोर्स करूँगा, मैंने कहा पूरे साल की फीस जमा करा दो. ही आई थिंक ही गॉट दैट LNT जानते हैं कंपनी, लार्सन एंड टूब्रो. LNT के उस समय IPO निकला था, तो IPO तब से आते हैं. उन्होंने शेयर्स में डाले थे, 10 या 20 शेयर आए थे, उन्होंने वो शेयर सेल ऑफ कर दिए, मेरे साल भर की फीस पे हो गई.
मैंने कहा यार डैड को शेयर बेचने पड़े, इसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेकेंड ईयर से आई स्टार्टेड डूइंग माई जॉब। तो सिस्टम में 6 महीने में 6 घंटे में पढ़ाता था, 6 घंटे हम पढ़ते थे, 3 घंटे प्रैक्टिकल्स, 3 घंटे थ्योरी। सुबह जाता था 6 बजे, शाम को 7-8 बजे तक वापस आ जाते थे, एंड देन रेस्ट इज हिस्ट्री। सिस्टम्स ही मेटाक्यूब में कन्वर्ट हुआ। सो मेटाक्यूब जो आज आप लोग जानते हैं, दैट वाज अर्लियर सिस्टम्स। मिस्टर केशव शर्मा इज स्टिल द डायरेक्टर। मैं उनसे 5 पेपर्स पढ़ा, एंड नाउ ही इज़ माई बॉस, एंड इट्स लाइक अ फैमिली। उनके बच्चे मेरे सामने बहुत छोटे थे, उनकी मैरिजेस में मैं गया हूँ, मेरी मैरिज में सर आए थे, मेरे बच्चों की मैरिज में सर के बच्चे आएंगे। तो इट्स वेरी 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 कॉमन फैमिली टर्म्स हो गए। अभी आई मेट विद एन एक्सीडेंट, ही वॉज द फर्स्ट टू कम टू हॉस्पिटल कि क्या हुआ है तुम्हें। कल आई वेंट टू ऑफिस, जैसे उनका देखा उनकी कार खड़ी है, एंड ही ऑलवेज हैव ऑल द कार्स हैव द सेम नंबर 0717, इट्स फिक्स। तो मैंने देखा सर की कार खड़ी है, सीधा उनके रूम में, बहुत दिन से मिला नहीं, और अब इट्स मोर लाइक अ फैमिली। सर मैं अभी भी बोलता हूँ बिकॉज ही वॉज माई टीचर, बट एंड ही इज़ लाइक 63, आई एम 51, अभी भी गैप है एज में और वो कभी कम होगा भी नहीं। बट द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस ही शोज, कल भी आधे घंटे की चैट में लाइक तुम काम कैसे कर रहे हो घर पे, हु इज़ हेल्पिंग यू इन टाइपिंग, हु इज़ हेल्पिंग यू इन, मतलब यू डोंट फील लाइक आप एक कॉर्पोरेट में हैं या कहीं पर हैं। सो दैट्स हाउ माई कैंपस मेडिकल से निकला, महाराजास कॉलेज, वहाँ से सिस्टम्स, वहाँ से मेटाक्यूब। ये मेरा कैंपस जर्नी है, अगर आप इसको जर्नी बोले तो। ओके, थैंक यू सो मच। सो गाइज, आपने एक चीज़ नोटिस की, सर के फादर ने इन पे गैम्बल खेला था कि हाँ चलो सारे मतलब 1 साल की फीस पे करते हैं, और सर का डेडिकेशन देखो आपकी, उन्होंने उस चीज़ को पे ऑफ किया। I don't have any other choice. Yeah, that was also a reason. Yeah. So yeah, let's move. Okay, so nowadays it is a trend of AI. So if your journey, when your journey started, AI existed back then, what effects it would have taken on you? So AI was there. So When- in our 25 papers course, entire B level जो था, which was MCA, there was a clear paper of AI. और ये जो NP प्रॉब्लम्स, NP के प्रॉब्लम्स, ये जो फाइनाइट इनफाइनाइट, ये तो हमने थ्योरेटिकली उस टाइम पढ़ लिया था। बट द बेस्ट पार्ट वाज, नो वन, अगेन हम जो स्टूडेंट्स ऐसे बैठते थे ग्रुप में, वी नेवर डिस्कस्ड कि ये जो अपन पढ़ रहे हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ होगा। इनफैक्ट ऑन अ लाइटर नोट, आज भी मुझे ये समझ में नहीं आता कि डेटा स्ट्रक्चर्स कहाँ यूज़ होता है, मैं लिंक लिस्ट कहाँ यूज़ करूँगा, ट्रीज कहाँ काम आएंगे। ठीक है, हम सर्चिंग एल्गोरिदम्स बनाते हैं एंड ऑल दैट स्टफ, बट जब सी और C++ करते थे, वी एक्चुअली ड्रॉ दोज डायग्राम्स लाइक फ्लो चार्ट्स। अगर डेटा बेसिस की हम बात करें तो वी टॉक अबाउट DFDs, ये बनाते थे, कागज़ पे ड्रॉ करते थे, बोर्ड के ऊपर हम ड्रॉ करते थे। बट नाउ इन दिस एज, मॉडर्न एज, जहाँ पे द कंपोनेंट्स आर रेडीली अवेलेबल टू बी यूज्ड, राइट, आप ऑब्जेक्ट का नाम लेके डॉट लगाते हैं, ऑल द प्रॉपर्टीज कम इन अ विंडो, यू डोंट इवन हैव टू रिमेंबर अ सिंगल नेम। ऑल्दो ये मैं इसको इसके फेवर में नहीं हूँ, आज भी नहीं हूँ, बिकॉज हमको ऑन टिप्स याद रहता था। अभी क्या होता है, हम डॉट लगा लगा के ट्राई कर रहे होते हैं ये होगा या नहीं होगा, एंड देन विद दिस गूगल एंड ChatGPT टू सपोर्ट यू फ्रॉम बैकग्राउंड, you guys are becoming very good developers, you are creating amazing apps around the world, but the point is no one is remembering कि ये कैसे किया है। उस समय कर दिया because I took help, ये geeks for code and coding websites दुनिया भर के अवेलेबल है। so अब एप्लीकेशन अप्लाई नहीं हो रही हैं, बट एनीवेज उस पर हम बाद में जाएंगे। सो अगर उस समय AI होता, आई थिंक टेस्ला कार्स वगैरह हम तभी बना रही होती, मैं ऐसी किसी कंपनी में जॉब कर रहा होता। आई ऑलवेज लव टॉकिंग, वर्किंग जहाँ पे टेक्नोलॉजी है, तो मे बी थ्योरेटिकल हो, क्योंकि इट्स बीन लॉन्ग, ऑलमोस्ट 10 years नाउ सिंस आई लेफ्ट कोडिंग, इट्स बीन लॉन्ग सिंस आई हैव टेस्टेड एनीथिंग, but what I've developed now is looking at something and then I say this is correct or not. So I'm more into now team managements, um, delivering to customers around the world, उनको convince करना, कोई प्रॉब्लम अगर हो रही है, सो आई एम द फर्स्ट टू गो के ठीक है कस्टमर बहुत नाराज़ है, देन आई एम ऑलवेज द फर्स्ट कि आप मेरे को बताओ व्हाट्स द प्रॉब्लम। माई फोन इज़ ऑलवेज ऑन 24/7 बिकॉज आई वर्क इन 2 time zones। एक आई एम लीडिंग द रोल्स रॉयस प्रोजेक्ट हमारे यहाँ पे, दैट्स UK बेस्ड। तो 11 बजे मॉर्निंग आई स्टार्ट वर्क टिल 8, लेट से 8 o'clock टीम ऑफ हो जाती है, एंड द अदर प्रोजेक्ट इज स्पेसिफिक टाइम जोन विच इज़
which starts at 8:30 p.m. in the evening and we work till 5 a.m. something. तो ऐसे लग रहा है मैं 24/7 ऑन हूँ, but then over the years I learned how to sleep while still be awake. तो आपका फ़ोन आपके आसपास में रहेगा, डेवलप द टीम्स, हम इस पे और बात करेंगे आगे. बट हाँ, अगेन आंसरिंग बैक टू द सेम लाइन, इफ एआई और उस लेवल की टेक्नोलॉजीज तब होती, possibly I would be in a very very technical company, not offshoring for sure. ओके, सो सर कंपनी में एंटर करने के बाद ये सैचुरेशन कब आ जाता है कि आप कोडिंग से टीम मैनेजमेंट और इन चीज़ों पे पहुंच जाते हो? Saturation is the wrong word. If there is a saturation coming in your life at whatever age, doesn't matter it's coding or not, then basically your growth stops. So it's up to you how you always feel like कि नहीं मुझे अभी कुछ और करना है. And I think IT world is one of the brilliant things because यहाँ कभी टेक्नोलॉजी कोई स्टॉप होती ही नहीं है. अगर सैचुरेशन आ गया होता तो सी लैंग्वेज पे आ गया होता. आई डिड ऑलमोस्ट 5 years सी प्रोग्रामिंग. हमारे टाइम में कोबोल भी था बिकॉज Y2K प्रॉब्लम जो आया था ईयर 2000 में. यू गाइज नो अबाउट Y2K प्रॉब्लम? Y2K is year 2000. Anyone? आप लोगों का आइडिया है? नो. वेरी गुड. सो इट वाज वेरी सिंपल. जो बिट्स और बाइट्स हार्डवेयर बनाते हैं, तो अगेन रिमेंबर हाउ सी लैंग्वेज इज डिफरेंट फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस. सी और असेंबली लैंग्वेज को आप यूज करके यू कैन एक्चुअली वर्क एट द मशीन लेवल, राइट? बाकी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं दे ऑलवेज हैव एन इंटरफेस. तो इसके लिए कंपाइलर्स, असेंबलर्स, ये सब बनाए गए सो दैट दे कन्वर्ट योर हाई लेवल लैंग्वेजेस टू लो लेवल लैंग्वेजेस टू वर्क ऑन द मशीन्स, राइट? तो उस समय क्या था, 2 bits रखे गए थे फॉर द एंड ऑफ द ईयर. बिकॉज व्हेन आई से, कोई मेरे से पूछे कि मेरा बर्थ ईयर क्या है, आई से 74. बाय डिफॉल्ट है वो 1974 है हमारे टाइम में. आज बाय डिफॉल्ट नहीं है. आप लोगों से मैं पूछूंगा, आप लोग बोलेंगे लेट से 21 या 11 या 01. मोर और लेस हम लोग उसके आगे 20 लगा देंगे, पर 2001 है, राइट? नाउ द प्रॉब्लम इज, जब 1970s 60s 50s में कंप्यूटर बनाए गए थे, नो वन एवर थॉट कि 2000 करके भी एक ईयर आएगा. और उस समय वो 2 बाइट्स में क्या जाएगा, 00. बट 00 विल टेक एवरी डेट बैक टू 1900, क्योंकि हम बाय डिफॉल्ट हर चीज़ के आगे 19 लगा रहे थे. मैंने जॉब कब स्टार्ट किया, 1996. शादी कब हुई, 1997. पढ़ाई कब चालू की, 1994. 20 तो कोई सोचता ही नहीं था. ऑल द वर्ल्ड कैलकुलेशंस उस समय जो भी बिजनेसेस ऑनलाइन थे वो सब 19 समथिंग के ऊपर चल रहे थे. तो सबने कहा 4 बिट्स क्यों यूज़ करनी है, पहले 2 तो बाय डिफॉल्ट है, कंप्यूटर ऐसे छोटा बनेगा, पावरफुल बनेगा. वो 2 शुरू के हटा दिए गए. ना IBM सोच पाया, ना माइक्रोसॉफ्ट सोच पाया, ना कोई और. फिर 94, 95, 96 में किसी को ये क्लिक हुआ कि व्हाट विल हैपन 99 के बाद रात को 12 बजे, 31 दिसंबर को सडनली 2 zeros लग जाएंगे. एंड ऑल द कैलकुलेशन, द रेट्स, द बैंक रेट्स, द फाइनेंस, एवरीथिंग इज गोज बैक टू 1900. तो अगर आज रेट लेट से 7% है, 1900 में मान लो 1% थी, पूरा बैंक का सिस्टम ही चेंज हो जाएगा. अब प्रॉब्लम आई कि इस लो लेवल पे जाके इसको सॉल्व कैसे किया जाए. सो देयर वाज अ लैंग्वेज कॉल्ड कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, अगर मुझे नाम से याद है फुल फॉर्म इसका. कोबोल वाज एक्चुअली यूज्ड टू सॉल्व दिस. तो 99 और 2000 में जो लोग को कोबोल पढ़ रखा था उनके लिए यूएस ने अपने गेट्स ओपन कर दिए. आप 6 महीने कोबोल करो, आप यूएस सिटीजनशिप. 6 महीने कोबोल, आप यूएस आ जाओ. तो मेरे टाइम में तो ये एक और भी बड़ा रश था. मतलब आई वॉज ऑलवेज पार्ट ऑफ अ रश. पहले PMT में जाना है, फिर पड़ोसी वाले रश, फिर फ्रेंड्स वाले रश, फिर IT 6 साल IT पढ़ लिया, जयपुर में आप काम कर रहे हो. एंड देन यार हर जना यूएस जा रहा है, मैं जिनको पढ़ा रहा हूँ वो यूएस में, मैं जिनसे पढ़ा हूँ वो यूएस में, मेरे बैच वाले यूएस के अंदर है, व्हाट आई एम डूइंग हियर. तो कोबोल करो एंड यूएस जाओ, ये एक रश चलता था उस समय. तो दोज आर द थिंग्स. और फिर धीरे धीरे लैंग्वेजेस आती गई. देन जावा केम इन, .NET केम इन, माइक्रोसॉफ्ट चल ही रहा था, हम लोग विजुअल बेसिक करते थे, विजुअल बेसिक .NET आ गया, C# आ गया, राइट? ASP करते थे, PHP आ गया आपके इंटरनेट वेबसाइट्स बनाने के लिए. आप आई थिंक ASP के साथ हम लोग करते थे SQL सर्वर, PHP के साथ MySQL आ गया विच वॉज अगेन फ्री वेबसाइट. देन ओपन सोर्स आने लगा. सो जैसे Selenium वॉज एन ओपन सोर्स. I think there was another language, Water, WATIR,
web application testing in Ruby. That is an open source. Entire world market, entire world ecosystem जो languages का था, that got changed. तो beauty about IT is अगर आपको IT में ही रहना है तो आपकी लाइफ में saturation word तो वैसे ही कभी नहीं आएगा, क्योंकि every 2 years आपको language change करनी पड़ेगी to survive. और ये तो मैं languages बोल रहा हूँ. Think about Windows came in, think about internet came in, think about mobiles came in, think about sensors came in, now think about AI is here. AI में पता नहीं अभी क्या क्या आएगा, कितना आएगा, we don't know. तो अगर आप ये बोलते हैं कि I am saturated, then it's better to change your job. And it's not just IT. अभी whatever field you go, whatever field, sales, आप sales में find out करो अगर आपके घर में कोई sales person है, how he works from morning to evening to convert his sales, to convert his opportunities into sales. कंपनियां आपको खड़े खड़े बाहर निकालती हैं if you don't give them the actual leads. खाली ये कहना कि मैं 10 लोगों का इंटरव्यू लेके आया, डजेंट मैटर. आप HR से बात करो. मेटाक्यूब HR फॉर एग्जांपल मेरे कंपनी के सॉरी हम लोग 20-20 साल से साथ काम कर रहे हैं. आई वांट कपल ऑफ रिसोर्सेज, कपल ऑफ डेवलपर्स इनटू माय टीम, लेट्स से बाय एंड ऑफ मार्च. हमने उनको जनवरी में बता दिया है, जस्ट टू फाइंड 2 गुड डेवलपर्स फ्रॉम जयपुर. आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट पुणे और बैंगलोर और गुड़गांव. फ्रॉम जयपुर दे आर नॉट एबल टू फाइंड इट, नॉट बिकॉज दे आर नॉट पुटिंग इन एफर्ट्स, इट्स बिकॉज द मार्केट हैज बिकम सो कॉम्पिटिटिव. और ये एनी वेयर यू गो, आप किसी से बात कीजिए, आप किसी ज्वेलर से बात करो, कैसा चल रहा है. ऑल्दो बिजनेस वाले हमेशा ही बोलते हैं अरे यार बहुत नॉर्मल चल रहा है, बट एक्चुअल में यू गो आउट एंड फाइंड आउट. बिकॉज वो टाइम गया जब हम लोग सिर्फ गोल्ड या डायमंड की बात कर रहे थे. अभी लोग आर्टिफिशियल की तरफ जा रहे हैं. ठीक है, आर्टिफिशियल भी लाख लाख रुपए के सेट्स आ रहे हैं, बट टू बाय आज के रेट पे गोल्ड में 5 तोला का सेट लेना 5 लाख 6 लाख का, जो आप एक दिन पहनोगे और फिर लॉकर में चला जाएगा, पीपल गो फॉर आर्टिफिशियल. तो आर्टिफिशियल बिजनेस हैज कम अप, देन द आर्टिफिशियल गोल्ड हैज कम, देन आर्टिफिशियल डायमंड्स हैव कम, फैक्ट्री मेड डायमंड्स आर इन द मार्केट. मतलब कहीं कोई स्टॉपेज नहीं है. मैं मंडी जाता हूँ तो मेरे को एप्पल किस दुकान से लेना है वो मुझे समझ में नहीं आता. देर आर 50 शॉप्स सेलिंग एप्पल. थिंक अबाउट द कॉम्पिटिशन. डोंट थिंक के अरे एप्पल पे तो मैं बार्गेन कर लूंगा. हर चीज़ को आप एक ब्रॉडर परस्पेक्टिव से देखो. वाई देर आर 50 शॉप्स इन द मार्केट. और उसके बाद लोग कह रहे हैं आपको मार्केट जाना ही क्यों है, हम आपको घर पे डिलीवर कर देंगे. एक ही ऐप है घर पे आने के लिए. हाउ मेनी एप्स आर देयर? 3-4 Blinkit, Zepto, Big Zepta. Basket, Zepto, स्विगी, yeah, Swiggy, Instamart, Big इंस्टामार्ट. Basket, Jio फिर Mart. जो आपके आसपास जो किराने की दुकानें हैं जिनसे आप कई सालों से ले रहे थे, अरे आपको मेरी दुकान पे क्यों आना है, आप तो फ़ोन करके बता दो. 50 रुपये डिलीवरी लेंगे, अगर 5,000 का है तो 50 भी नहीं लेंगे. फिर आप कहोगे यार आप क्या 50 ले रहे हो, सालों से जानते हो. अरे सर छोड़ो, आपके लिए बंदा घर आके दे जाएगा. मतलब it's not just about the facilities being given to consumers, it's also about the competition in market to survive. अभी कोई भी ब्रांड, कोई भी चीज़, it's not just surviving because of its name. आप लोगों की जनरेशन ने क्या किया है, you have just removed all the brands from the scenarios. अब आप लोगों के लिए टी शर्ट एक टी शर्ट है, राइट. हमारे टाइम में एक टी शर्ट होता था, यार किसका पहना है, एलन सॉली का है, अरे यार सॉलिड पैसे वाली पार्टी है उस जमाने में, राइट. अभी आप लोग, आई डोंट थिंक यू कंपेयर एलन सॉली विद सम अदर ब्रांड. आप लोगों के लिए कार है, कार है, बिकॉज अगर आप कार नहीं भी परचेस कर रहे हो, देर इज ऑलवेज उबर अवेलेबल. ठीक है, देर इज फ्यू ब्रांड्स, ऑडी इज ऑलवेज देयर, राइट. BMW इज ऑलवेज देयर, Volkswagen इज देयर, Honda City इज देयर, डिपेंडिंग ऑन क्या है. बट हमारे टाइम में इन सब चीज़ों के साथ एक स्टेटस अटैच्ड होता था. सबके पास 800 वॉज द फर्स्ट कार. इंडिया का मिडिल जो इनकम ग्रुप था वो 800 से स्टार्ट हुआ. बट माइंड में क्या था, 800 ले तो लिया यार, पर मुझे होंडा सिटी पे पहुंचना है, बिकॉज ड्रीम कार वही होती थी. BMW और ये सब तो फॉरेन की कारें थी, अब तो खैर यहाँ अवेलेबल है. एयर कंडीशनिंग वॉज एन लग्जरी. फाइन, हैविंग अ फोन इन द हैंड. आप लोग कहते हो हाउ डज इट मैटर, आईफोन. आई थिंक आधे लोगों के पास आईफोन होगा, और नहीं भी है तो डजेंट मैटर. नो वन शोज ऑफ कि मेरे पास आईफोन है. फोन इज अ फोन. आप लोग फोन को यूटिलिटी की तरह यूज करते हो, हम लोग फोन को शो ऑफ में यूज करते थे. मेरे पास आईफोन है, बात खत्म. ठीक है, कौन सा फोन है तेरे पास, अरे यार एप्पल. एप्पल बोल दिया, बात खत्म हो गई. तुम्हारे पास कंप्यूटर है, होगा, आई हैव अ मैक. मैक को मैं लैपटॉप नहीं बोलता हूँ, आज भी नहीं बोलता. मेरे मैक पे देख लो. मेरी वाइफ कहती है हाँ तुम्हारा लैपटॉप. मैंने कहा मैक को लैपटॉप नहीं कहते हैं, मैक बुरा मान जाता है. तो
दोज वर द थिंग्स, राइट? अभी आप लोगों के लिए कंप्यूटर इज अ कंप्यूटर, कार इज अ कार, हाउस इज अ हाउस, मतलब ऑफ कोर्स ड्रीम्स होते हैं, बट द पॉइंट इज पीपल आर रेडी, बिगर शहरों में पीपल आर रेडी टू रेंट हाउस, बढ़िया से बढ़िया लोकेलिटी में वो ले लेंगे, बिकॉज उनको पता है रेंट इज मच चीपर। एक घर खरीदना बॉम्बे में फॉर एग्जांपल 3-4 करोड़ से नीचे, अब तो जयपुर में भी है, 3-4 करोड़ से नीचे अच्छी लोकेलिटी में फ्लैट नहीं मिलता। हम वी हैव टू एक्सेप्ट कि हमारे मिडिल क्लास ग्रुप में 4 करोड़ पे पहुंचना विदाउट अ फैमिली बैकग्राउंड या फैमिली सपोर्ट, अगर बिजनेस है तो लगे, पता नहीं हम लोग लाइफ एंड में भी पहुंच पाएंगे या नहीं। सो आप लोगों के जनरेशन इज वेरी रियलिस्टिक। 4 करोड़ का सारी जिंदगी 4 करोड़ में इकट्ठा करता रहूंगा तब भी नहीं होगा, और घर तब भी नहीं आएगा। इससे तो बेटर है 1 करोड़ का ड्रीम रखते हैं, और बाकी जो पैसा इकट्ठा करेंगे उससे हम मॉरिशस घूम के आएंगे। हम लोग शादी के बाद मसूरी जाते थे, नैनीताल जाते थे, माउंट आबू चले जाते थे। आप लोगों का स्टार्ट होता है इंडोनेशिया जाए, स्विट्जरलैंड। ये थोड़ा सा बड़ा है, ये थोड़ा सा बड़ा है, इंडोनेशिया जाए, मलेशिया चले जाएं, मॉरिशस चले जाएं, राइट? सो द ड्रीम्स हैव चेंज्ड, द एक्सपेक्टेशंस हैव चेंज्ड, इनकम लेवल्स ऑफ कोर्स चेंज तो हुए ही हैं, एंड द बिगेस्ट थिंग, एंड आई थिंक बहुत एप्ट डे है आज का, वी हैव विमेंस डे टुडे, so the biggest thing is all the women are working now in this generation. So I think there is a huge round of clap for all the women today. Room mein. So in our generation, of course, there were less women. मेरे बैच में काफ़ी लड़कियां थी फिर भी, but अगर मैं एक जनरेशन पीछे जाता हूँ, so I think my mom was one of the very early person जो ने जॉब ज्वाइन किया, but मैं मेरे मॉम के cousins, उनके फ्रेंड्स वगैरह को देखता हूँ, no one was working. So there was always one person who is working and there were bigger families. अभी there are 2 people who are working and there are smaller families. आप में से जो भी जॉब करेगा, आई एम 99.9% श्योर आपको उसका 50% अपनी फैमिली में नहीं देना होगा। आपके पापा नहीं मांगेंगे कि भाई घर चलाना है, जो कमाने लगे आप घर में पैसा डालना चालू कर। ये हमारे टाइम में कॉमन लाइन होती थी। तो अब मैंने 3,000 से नौकरी चालू की तो 1,000 रुपये घर में जाते थे। आप लोग 30-35,000, 40,000, 50,000 जिस पे भी स्टार्ट करेंगे वो पैसा आपका है। ऊपर से आपके पापा ही कहेंगे बाइक लेनी है तो ले ले यार, क्यों परेशान हो रहा है, रोज बस में जाता है। पापा मेरे पास 60,000 ही है, ले 40 में देता हूँ, जा लेके आ। पहले तो जस्ट रिवर्स था। सो दैट्स हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड, दैट्स हाउ मेंटालिटीज हैव चेंज्ड, एंड दैट्स हाउ द एक्सपेक्टेशंस हैव चेंज्ड। ठीक, सो ये एक पूरा सेटअप है जो चेंज हो रहा है। आप लोग ये बात समझ इसलिए नहीं पाएंगे बिकॉज यू आर नॉट बॉर्न इनटू दोज एजेस। मैं दोनों साइड की लाइफ देख चुका हूँ, 25 साल उधर की, 25 साल इधर की। जब मैं कमाने लगा और मैं अपने घर में वाइट गुड्स, लग्जरी गुड्स लाने लगा जो आपके लिए लग्जरी नहीं है। आप तो किराया लेने भी जाते हो, एक पीजी कमरा, पहले पूछते हो एसी है क्या, ठीक है, और उसके लिए आप 10,000 रुपये महीने का पीजी का कॉस्ट देने को रेडी हो, क्योंकि आपके लिए एसी अब लग्जरी नहीं है, इट्स अ नेसेसिटी, राइट? अगर मैं पूछूं अभी, लेट्स से थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाते हैं, आगे आगे आप बैठे हो, वाइट टी शर्ट, आपके लिए अभी फर्स्ट लग्जरी आइटम आप क्या परचेज करोगे? लग्जरी, रिमेंबर, जो आपकी पॉकेट से बाहर है। आप बजट किसके लिए बनाओगे? कार। विच कार? कार इज नॉट अ लग्जरी। आप 5 लाख की कार तो बहुत खड़े खड़े ले लोगे। रेंज रोवर। रेंज रोवर, ओके फाइन। इधर से कोई, आप बताएं सेकंड में जो बैठे विद मुस्ताश, या बाइक इज अ लग्जरी फॉर यू? गुड, गुड, देन आई कैन अज्यूम, ठीक है। वो पीछे एक बड़ी क्वाइट सी गर्ल बैठी है चश्मे में, बिल्कुल सेंटर में, यस, हाँ, आप लग्जरी फॉर यू? अभी रेंज रोवर, ओके। वहां पीछे बिल्कुल गेट पे देयर इज अ गाय सिटिंग, बिल्कुल गेट पे। सब लोगों को कार चाहिए। कार के अलावा किसी के लिए और लग्जरी है कुछ? हाँ जी? जमीन। वैसे ये बहुत बड़ी लग्जरी आज के हाउ टाइम पे। हाउ जमीन इज अ लग्जरी फॉर यू? वो तो इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो आप बहुत कंटेंटेड हो अपनी लाइफ में, दैट इज गुड। आपके पीछे, ठीक है, शूज कैन बी अ लग्जरी डिपेंडिंग ऑन आप क्या लेना, माइकल जॉर्डन लेना चाहते हो, ओके, और ऊपर कितने का आता है? ठीक है, अब मैं समझ सकता हूं, बिकॉज लाख रुपए आपकी जेब में भी होंगे ना, आपके फादर आपको परचेज नहीं करने देंगे। लाख रुपए के कौन से जूते होते हैं, पहला डायलॉग ये आएगा। सो दैट्स अ लग्जरी, ठीक है, बट अगेन यू कैन सी दैट, राइट?
Did you ever used AI to do your work, like given the code and fix the bug, something like that? Not exactly. Last 6 months actually I tried, and I tried AI only to hear my language and convert it into text Okay. because of this hand problem, right? But otherwise, I'm trying lots of my teams actually to do that. हमने POCs बनाए customers के लिए because everyone wants AI. But again, I would say don't get lost in the AI world. AI बहुत बड़ा hype है, मुझे मैं खुद कह रहा हूँ जबकि मैं यूज़ करता हूँ. बट AI इज़ अ बिग हाइप. जो हमें लग रहा है कि दुनिया की हर जॉब जब आप लोग निकल के मार्केट में आएंगे, अगर हमें AI नहीं आता तो वी आर एक्चुअली नो वेयर. ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है. AI कैन नॉट टेक योर जॉब्स. ह्यूमन इंटेलिजेंस तो चाहिए चाहिए. AI कैन नॉट मिमिक ईच एंड एवरीथिंग. जिस दिन वो आएगा उस दिन फिर यू विल सी रोबोट्स एवरीवेयर. तब लगेगा कि ह्यूमन की अब रिक्वायरमेंट नहीं है, कि चारों तरफ रोबोट्स है, सब कुछ है. AI इज़ देयर. सो जब आप लोग अपना नेसेसिटी वाली चीज़ें खरीदने जाएंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, जैसे टेलीविज़न, आपको एडवर्टीजमेंट्स मिलेंगे AI इनेबल्ड वॉशिंग मशीन्स. जैसे व्हेन यू पुट द क्लोथ्स इनसाइड, उसमें शायद मैं अज्यूम कर रहा हूँ शायद कोई ऐसी पॉकेट होगी जिसमें आप डिटर्जेंट डाल दो, fill it, and then looking at the number of clothes, looking at the weight of total clothes, it will automatically decide कि कितना डिटर्जेंट उसमें मिक्स होना है, कितना वाटर जाना है. तो वो जो हम डिसाइड करते हैं, अभी हम तो रफली डाल देते हैं, एक मुट्ठी डाल दो, दो मुट्ठी डाल दो, काम हो गया. बट AI विल एक्चुअली कैलकुलेट दोज थिंग्स. टेस्ला कार का डिस्कशन चल रहा है कि लेट्स ब्रिंग इट इन इंडिया. आई थिंक मुंबई के अंदर दे हैव ओपन्ड ऑफिस, दे हैव हायर्ड फ्यू सेल्स पीपल टू सेल टेस्ला. बट अगेन आई डोंट नो आप में से कभी कोई टेस्ला में बैठा है या नहीं. उसके लिए यूएस जाना पड़ेगा या यूरोप में. आई लकीली गॉट ट्वाइस, एक बार एज एन ऊबर टेस्ला और एक बार माय कजन्स कार, एंड आई वाज अमेज्ड लुकिंग एट द टेक्नोलॉजी. डरा भी काफ़ी क्योंकि उसने लिटरली स्टीयरिंग छोड़ दिया था, वो पीछे मुड़ के मेरे से बात कर रहा है. कार चल रही है, कार मुड़ रही है, कार स्टॉप हो रही है, कार पार्किंग में अपने आप जा रही है, आपको कुछ नहीं करना. एंड देन आई स्टार्टेड थिंकिंग फ्रॉम एन IT परस्पेक्टिव, क्या हो अगर ये कार जयपुर आ जाए? हाउ इट विल फाइंड द रूट्स, हाउ इट विल फाइंड कि कहाँ से कौन आ रहा है. लाल बत्ती पे रुकना है, कार तो रुक गई, पीछे वाले ने रुकने से मना कर दिया, वो कार को ले गया साथ में, राइट. और जानवर सामने आ गए, यूएस में तो नहीं आएंगे, यूरोप में नहीं आते जानवर सामने. वो जानवरों को टेस्ला कैसे पिक करेगा? और देन अलग अलग स्पीड के लोग हैं, देयर इज़ नो लेन सिस्टम. एक ही लेन में टू व्हीलर भी है, साइकिल भी है, रिक्शा भी है, ई रिक्शा भी है, ऑटोज़ भी हैं, ऊबर कार्स भी हैं, हम भी हैं, और हमें भी अलग अलग स्पीड के लोग हैं. टेस्ला करेगा कैसे ये? सो इट विल बी, अगर वो सक्सेस होता है, आई थिंक इट विल बी अ मार्वल इन टेक्निकल इंडस्ट्री. आई एक्चुअली डोंट थिंक इट विल बी सक्सेसफुल हियर. अभी तो पॉलिटिशियंस ही खेलेंगे उससे बहुत ज़्यादा. अभी तो बिगेस्ट तो पहले पॉलिटिशियंस हैं. टेस्ला इंडिया में आएगी तो हमारा कट कितना होगा, उसके बाद हम बाकी चीज़ें देखेंगे. इट्स जस्ट लाइक ऑल दीज रोल्स रॉयस कार्स, राइट, जो सिर्फ अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर ऐसे लोगों के पास है. यू डोंट सी दीज कार्स ऑन रोड. हमारे रोड्स बहुत बेटर हैं, द रोड्स आई हैव सीन एंड द रोड्स यू गाइज आर सीइंग. बट टेस्ला के लिए खाली रोड नहीं चाहिए होती, टेस्ला के लिए बहुत कुछ चाहिए. बट विल सी कैसे क्या होगा वहाँ पे. We have a activity, rapid fire activity. In Sure. this, I'm going to tell you a situation and you have to answer quickly. Oh, It is time bounded. Okay. So first is, if not an engineer, what would you have been? I will be in movies. Actor. नहीं, background. Okay. What is the most bizarre business idea you have actually heard and that actually worked? Bizarre business idea I heard That actually worked. and it worked. बहुत early age के अंदर, मतलब sell, put a stall of poha in front of a college, and now it is working brilliantly. मोदी जी ने बोला था, राइट, पकौड़े लगाओ और ये करो. उस समय सब बहुत उड़ाया गया था उनको, ये हमारे यूथ की ये जॉब्स क्रिएट करेंगे. बट नाउ आई एम सीइंग एक्चुअली देयर इज अ शाम पोहा भंडार मेरी गली के कोने पे. बट आई डोंट नो, कम से कम 50,000 उठा के जाता होगा वो रोज, इतना चलता है वो. सो दैट्स अ ग्रेट आइडिया. Okay. If you could swap jobs with one of your employee or colleague for one day, what will you? With What my role? employee? Which? What? My role? employee, I am not an employer. No, your colleague maybe. What role would you pick in MetaCube?
I'll go to my director's Post. position. सर Okay. से बोलूंगा सर एक दिन के लिए मुझे डायरेक्टर बनने दो. So Parijat sir or Keshav sir? Parijat sir. Okay. Keshav sir receives a lot of respect because he is the teacher of many of us seniors. Parijat is of our age. He is just 2 years senior to me from school. But he wears all those, वो कांटों का ताज होता है ना, वो पारिजात जी पहनते हैं. केशव जी को तो क्या है, रिस्पेक्ट इतना ज़बरदस्त लेवल पे होता है कि आप उनके रूम में जा रहे हैं तो यू आर सो हम्बल, सो मॉडेस्ट. सर प्लीज़, वो कहते बैठो. नहीं सर, आई एम फाइन. और पारिजात के जब हम रूम में जाते हैं तो फील्स लाइक ए बॉस, मतलब इट्स लाइक बॉस एंड टीचर. तो मैं उनका लेना चाहता हूँ एंड देन आई वांट टू सी थिंग्स फ्रॉम हिज पर्सपेक्टिव, टेबल के इस साइड आके. Okay. Okay. So, what is the most funniest bug you have ever encountered? सो इट्स अ रैपिड फायर, बट इसमें मुझे 2 मिनट लगेंगे बोलने में. सो गाइज, अगेन आई कैन शेयर, और आप इसको बाहर एक्सपोज मत करना. सो आई एम अ वाइन लवर. ठीक है, ये बात बाहर मत भेज देना प्लीज, सबके पास सोशल मीडिया है. नहीं, दैट इज ओके, अभी वो मत कर देना. वाइन लवर का मतलब ये नहीं मैं सुबह शाम हाथ में लेके बैठा रहता हूँ. इट्स वेरी रेयर, बट जब भी मैं यूरोप ट्रैवल्स वगैरह करता हूँ, मेरा एक अट्रैक्शन होता है व्हेन पीपल, वहाँ पे वाइन बहुत चलती है. और ठीक है, हाथ में आपने एक गिलास ले लिया और वो चल रहा है आराम से, बट ऑफ ऑल द एल्कोहल्स वाइन इज़ माई मोस्ट फेवरेट. और मैं और बाकी कुछ टच भी नहीं करता, सब बंद कर दिया. सो वन फाइन डे जब मैं यूके से लौटा था 2009 या 10 में, बड़ा शौक चढ़ा कि यार उम्र है, जेब में पैसा भी आने लग रहा है, मैं यूके जाके आ चुका हूँ, है ना. आई शुड हैव वाइन्स एट माई हाउस. आई एम अ जैन बाय द वे, तो वाइन होनी चाहिए घर में. तो देर वॉज अ वाइन सोसाइटी ऑफ इंडिया उस टाइम थी, अभी भी है, पूना बेस्ड है. कहीं मैंने सर्च किया और उन्होंने ये बोला कि वी डिलीवर वाइन टू योर हाउस. लेकिन रूल ये है कि जो वाइन्स आएंगी उसमें आपको कम से कम 4 वाइन पर मंथ ऑर्डर करनी है. मैंने कहा मेरी कैपेसिटी इतनी नहीं है वाइन के लिए, 4 वाइन एक महीना कौन करेगा, जबकि नॉर्मल वाइन्स आराम से हो जाती हैं. तो हमने ग्रुप बनाया ऑफिस के अंदर, वाइन सोसाइटी ऑफ मेटा क्यूब. ठीक है, एंड आई वॉज द ऑफ कोर्स द डायरेक्टर ऑफ दैट. ठीक है, सो देयर वर फ्रेंड्स लाइक मी, मेरे एज ग्रुप के. और ये मैं बात कर रहा हूँ 2009-10 की, तो अराउंड आज से 15 साल पहले. एंड आई वॉज लाइक 34-35, क्वाइट यंग. अब हमने कहा वाइन आती, ठीक है कर लिया. अब वाइन लेके आप कब बैठोगे, पापा के आगे बैठ नहीं सकते, मम्मी के आगे बैठ नहीं सकते, घर में कल्चर है नहीं. बीवी बिल्कुल धार्मिक फैमिली से आई हुई, भले वो प्रोफेशनल है, पर मतलब ही नहीं. तो वाइन अल्टीमेटली कहाँ रखी जाएगी, आपके बुक्स के पीछे. मेरा बेसमेंट ऑफिस है. अब रात को टेस्टिंग मेरी बचपन से आदत थी, मैं जब से मैं काम करता था रात को काम करता था. तो बड़े शौक में स्टाइल में वाइन की ग्लास लेकर आया मार्केट से. नॉर्मल ग्लास में नहीं चलेगा, पूरा वाइन एक सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है. और छोटा सा 1 घूंट 2 घूंट वाइन की ग्लास साइड में, आप काम कर रहे हैं. अब रात को 12 साढ़े 12, पता आई डोंट रिमेम्बर द टाइम, कोई वाइन होते होते, और मैंने कोई एक बटन पे क्लिक किया, देयर वाज एन एक्सेप्शन ऑन द स्क्रीन. मैंने कहा गुड यार, रात को बग मिल गया. उसका स्क्रीनशॉट लिया, जीरा में जाके बग लॉक कर दिया, काम वाम करके सो गए आराम से. नेक्स्ट डे ऑफिस आया बड़ा खुशी खुशी, क्योंकि डेवलपर्स के लिए मैं बग ऑलरेडी लॉक कर चुका था. आया तो डेवलपर्स भी लगे हुए दोनों कि यार ये बग आया है. कहते विपिन सर ये बग है ना, रिप्रोड्यूस नहीं हो रहा है, हमने सेम स्टेप्स बार बार डाले लेकिन सॉफ्टवेयर तो चल रहा है. मैंने कहा यार मैंने रात को एक्सेप्शन देखा है. बोले हाँ वी नो, लॉक्स के अंदर भी एक्सेप्शन आया हुआ है. तो आपने एग्जैक्टली क्या किया है मुझे बताओ. मैंने दुनिया भर की चीज़ें ट्राई कर ली, मेरे से बग रिप्रोड्यूस नहीं हुआ. अब एज अ टेस्टर आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि वॉट एवर यू हैव लॉग्ड यू आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस इट. दैट मीन्स वो एक फेक बग निकला. वो दिन तो निकल गया. वापस शाम को घर आया, वाइन ग्लास टेबल पे, फिर कुछ कर रहा था, वो बग रिप्रोड्यूस हो गया. मैंने कहा यार व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग. मैंने फिर अगले दिन का स्क्रीनशॉट डाला विद टाइम लॉग्स एंड एवरीथिंग. मैं अगले दिन फिर ऑफिस गया, मैंने कहा बग तो आ गया रात को. अब डेवलपर्स बैठे सोचे हमको तो फिर नहीं मिल रहा, क्योंकि मतलब मैं टेस्टर था, मेरे से बग रिप्रोड्यूस नहीं हो रहा. बोले क्या कर रहे थे, मैंने ऐसे ही एक्सप्लेन किया. बोले पहले तो इनके लिए वाइन ग्लास मंगाओ. ठीक है, वाइन ग्लास रखो इनके टेबल पे, जबकि एक्चुअल में ऐसा कुछ हुआ नहीं. फिर बोले कब कितने बजे क्या, देन आई टोल्ड के 12 बजे. अच्छा उस समय क्या था, यूएस टाइम जोन में, यूएस में 5 टाइम जोन्स होते हैं इफ़ यू गाइज नो. हम आई थिंक ये काम कर रहे थे पिट्सबर्ग के लिए. सो वो टाइम जोन और इंडिया के टाइम जोन में एग्जैक्ट 12 आवर्स का डिफरेंस था. यानी जब अपने यहाँ पे, वहाँ पर जब आफ्टरनून में 12 बजते थे, इंडिया में रात के 12 बजते थे, द टाइम जब मैं काम कर रहा था. और 12 बजे क्या होता था, देयर वर फ्यू सर्विसेज बैक एंड में जो एक दूसरे पे ओवरलैप करती थी.
कुछ सर्विसेज स्टॉप होती थी, कुछ सर्विसेज स्टार्ट होती थी. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक एपीआई सर्विसेज जो सॉफ्टवेयर के होते हैं. वो जो 30 सेकेंड का टाइम गैप था एक सर्विस से दूसरी सर्विस जाने में, एग्जैक्टली उसी टाइम पे वाइन पीते पीते मैंने कोई की प्रेस कर दी थी. तो एक की प्रेस होते ही कुछ ना कुछ अंदर कॉल गया. उस समय वो सर्विस अवेलेबल नहीं थी, एक्सेप्शन आ गया. अब दिन में जब बंदे ट्राई कर रहे हैं डेवलपर्स, और मैं खुद ट्राई कर रहा हूँ, बिकॉज द सर्विसेज वर रनिंग स्मूथली, वो प्रॉब्लम कभी मिली नहीं रही थी. सो दैट वाज अ वेरी बिजार बग जो मैंने ढूंढा. बट आई डोंट से कि वाइन पी के काम करने से बहुत बढ़िया काम होता है, ऐसा नहीं होता. बट ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी थी, और जो हुआ सो हुआ. बट एटलीस्ट आई वॉज एबल टू फाइंड समथिंग जो शायद यूजर्स, रियल टाइम यूजर्स कभी 5 साल 10 साल बाद ढूंढते. एग्जैक्ट उसी सेकंड पे आपको हिट करना है उस बटन को, जो शायद मैं कर पाया. So, okay. So this one is an important question, guys. Pay attention. What qualities do you look for when hiring top talents? That's a good question. Top talent as a fresher or a lateral hiring? As a fresher. As a fresher. Guys, so again, पीछे आपने कुछ सुनाओ ना सुनाओ, up to your choice. ये बहुत important answer है आपके लिए. I go to a lot of hunting, talent hunting, right? And we invite lot of freshers to our colleges. उनको हम interview लेते हैं, select करते हैं, train करते हैं, and then help them begin their careers. There are few things जो मेरे लिए बहुत important होती है. First and foremost, of course, technology. वो तो by default है. But I also know कि आप लोग कॉलेज से निकल कर आ रहे हो, right? I don't compare you with, let's say, these guys जो suppose 2 या 3 years से कॉलेज जॉब में है ना. मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि this guy is a fresher. So concepts for me are very important. First of all, जैसा हमने बीच में बात की थी कि we don't know data structures कहाँ यूज़ होता है, या DBMS में अगर आपने पढ़ा हो वो 1NF, 2NF, 3NF, बॉयज स्क्वाड, राइट? ये कहाँ यूज़ होंगे यू डोंट नो. हम लोग भी आज बहुत जगहों पे नहीं जानते, लेकिन यू शुड नो व्हाट एग्जैक्टली इज़ 1NF, व्हाट एग्जैक्टली इज़ 2NF. लिंक लिस्ट क्या होती है, सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होते हैं, AI क्या है आज के स्टेट में. लेट्स से इफ़ आई गो एंड आज का अगर अपन इंटरव्यू फेस कर रहे हैं, मे बी मैं आप में से किसी को बुला सकता हूँ. ठीक है, कैन आई डू समथिंग स्मॉल वेरी क्विक डेमो अगर मेरे पास टाइम है तो? Mm, डू वी हैव टाइम? Guys, we would like to have the whole scenario of it कि कैसे वो एंटर करती है, कैसे उन्हें पूछना नहीं, एंटर ये चाहिए. अपने हिसाब से कर गए. आई गिव फीडबैक्स. Okay, so ठीक है. हेलो, आप बैठे प्लीज. व्हाट्स योर नेम? Sir, my name is Kanika Agarwal. ओके. एंड which college are you from? Just tell me quickly in 1 minute about SKIT yourself Jaipur. and other things, what stream and everything. Pursuing BTech in AI specializations. Specialization in AI. Okay. Where you want to see yourself in, let's say, 5 years from now? I'm aspiring for an SD role in a company. Which role? SD role. SD role. Okay. Why you think I should hire you? What qualities you bring for me? I'm a little bit nervous right now. Don't be nervous. Ultimately आपको मेरे साथ ही काम करना है. But I'm not able to answer this right now. Think something. ओके, सो कुछ तो सोचा होगा ना कि एसडी क्यों बनना है, क्या क्वालिटीज है तुम में कि तुम एसडी बनना चाहती हो. Maybe because of my critical thinking Okay. and determined nature. Critical thinking of, या आपकी thinking critical है. Problem solving. Problem solving. So you love solving critical problems. Okay. Give me one example आपने कोई critical problem solve की हो. Just one example. या even don't give me the solution. Just give me one problem जो आपके हिसाब से critical है. At your level, of course. हो सकता है मेरे लिए simple हो. At your level. Sir, मैं समझी नहीं. कोई कोडिंग प्रॉब्लम जैसे आप पढ़ रहे हो राइट अभी, या पढ़ाई फिनिश की है, जो भी कोई कोडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम जो आपको लगा ये तो क्रिटिकल है बहुत. लीड कोड का कोई क्वेश्चन या कुछ भी जो आपने सॉल्व किया हो. Okay. Currently in my mind, I'm getting the rainwater trapping problem. तो उसमें होता है कि आपको बताना है कि 2 बिल्डिंग्स के बीच में आप कितना यूनिट वाटर आप स्टोर कर सकते हैं. So there are so many ways to tackle this problem. So I use Stack for this. Okay, which is good. ठीक है, I understand where it is coming from. अच्छा एक चीज़ बताएं, you want to continue in AI only? Yeah.
इफ आई ऑफर यू अ सेल्सफोर्स जॉब, एआई नहीं है उसमें बिल्कुल भी, वुड यू बी इंटरेस्टेड? I can try. You can try. Do you know about Salesforce? No. You still want to try? Okay, which is good. ठीक है, आई थिंक हम इसको यहाँ स्टॉप करते हैं, आप यहीं बैठे रहो, ठीक है? कपल ऑफ पॉइंट्स गाइस. फर्स्ट ऑफ ऑल, शी वॉलंटियर्ड, ठीक है? सो दैट मीन्स जो हम आप लोगों की टर्म में अपन यूज करते हैं ना, डेयरिंग, शी इज रेडी फॉर दैट. दैट्स फर्स्ट पॉजिटिव पॉइंट फॉर मी. If someone is ready to do something, so that's good. Can we know your name, please? Kanika. Kanika, Kanika. ठीक है? So Kanika, despite knowing कि यहाँ से अभी इनका कोई selection नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, but still out of like what 50 odd 60 odd people, she raised her hand. So ये कहती है कि ठीक है, I want to get noticed from a group of people. That also shows इनके mind में कितना openness है. I think learnability is a critical thing which I want to see. When I offered her Salesforce job, इन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं मुझे नहीं करना, मैं तो AI में ही जाना है. Always remember, आप जब एज अ फ्रेशर मार्केट में आ रहे हो, राइट, इधर यू गो टू अ स्पेसिफिक कंपनी फॉर अ स्पेसिफिक जॉब. जैसे मैं टेस्ला में जाऊंगा क्योंकि मुझे टेस्ला कार पे ही काम करना है, बट हाउ मेनी टेस्ला कंपनीज आर अराउंड द वर्ल्ड? बहुत ही लिमिटेड है. हम आईटी वाले हैं, मुझे सेल्सफोर्स में जाना है, एआई में जाना है, एवरी कंपनी इज डूइंग दैट. कई लोग बोलते हैं नहीं सर मेरे को तो यही करना है. आप सुनो तो सही, आप एक बार पूछो तो सही कि वाई सेल्सफोर्स, वाई नॉट सेल्सफोर्स एंड अदर स्टफ. तो वो चीज़ें थी. कपल ऑफ थिंग्स जो मैं फीडबैक होगा, जैसे फॉर एग्जांपल क्रिटिकल थिंकिंग, जैसे इन्होंने बोला, क्रिटिकल थिंकिंग इज़ अ वेरी, आई वुड से, स्ट्रॉन्ग वर्ड. आई वांट टू वर्क ऑन क्रिटिकल एप्लीकेशंस, राइट. क्रिटिकल एप्लीकेशंस आपको क्लियर भी होना चाहिए व्हाट काइंड ऑफ क्रिटिकल एप्लीकेशंस यू वांट. सो यू कैन नॉट जस्ट यूज फैंसी वर्ड्स. आप इंप्रेशन मारने के लिए इंटरव्यूअर के ऊपर मैं तो ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ, विच इज़ ग्रेट, आपने सुना हुआ होगा या प्रिपेयर करके आए हो, बट द मोमेंट आई गो 1 level डीप या 2 levels डीप, आप वहाँ पे अटक जाओगे. इफ़ यू डोंट हैव exactly the knowledge of what a critical application is all about, then never say no, never say मुझे नहीं आता. Always say कि I just have a very basic idea about this, maybe a definition, है ना, but I would love to do these things. ठीक है? If given a chance, I would definitely want to improve my knowledge on this by online training and by doing real world problems and other stuff. But अगर आप ये नहीं सुना, नहीं सर मुझे आइडिया नहीं है, आपको आइडिया नहीं है, that's a good thing rather than wasting time of both. But होता है ना, always give it a try. जैसे मैं आपको एक algorithm देता हूँ अभी लिखने को, आपने कभी नहीं किया होगा, give it a try. Try दे, उसमें कोई नुकसान नहीं है. हाँ, ये ज़रूर है कि मैं आपको बोलता हूँ कि ठीक है मुझे फिबोनाची सीरीज़ का एक एल्गोरिथम आप ड्रॉ करके दो कि हाउ फिबोनाची सीरीज़ हम जनरेट करेंगे, और आप उसकी जगह पे प्राइम नंबर्स ट्राई कर रहे हो, और आपको मन में बहुत अच्छे से पता है प्राइम नंबर्स का फिबोनाची सीरीज से कोई एसोसिएशन नहीं है, फाइन, स्टिल आप ट्राई कर रहे हो. और जब इंटरव्यूअर देखेगा, बॉस दिस इज़ प्राइम नंबर, आप क्या कर रहे हो, मैं तो कुछ और पूछ रहा था आपसे, वो चीज़ नहीं है. तो अगर कोई आपको कहता है फिबोनाची सीरीज़ आपको नहीं क्लियर है, एक बार वापस पूछ लो, सर जस्ट टू क्रॉस चेक, फिबोनाची सीरीज इज दैट 1 1 2 3 5 8 13, यही वाला बात कर रहे हैं ना, उसमें क्रॉस चेक करने में कोई नुकसान नहीं है. बिकॉज व्हेन यू कम टू अ रियल जॉब आफ्टर योर इंटरव्यूज और आपको डेली टास्क असाइन में होगा, इफ़ यू डोंट आस्क रेलेवेंट क्वेश्चंस, करेक्ट क्वेश्चंस, गुड क्वेश्चंस, आपको वो क्लैरिटी नहीं होगी कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना है. एंड एट द एंड ऑफ द डे जब आपसे मैं काम लेने आऊँगा और आप मुझे एक ही जगह बी हाथ में दे दोगे, देन आई से व्हाट इज दिस, यू स्पेंड एंटायर डे, आपने पूरा दिन वेस्ट किया, यू नेवर आस्क अ क्वेश्चन एंड देन यू आर डिलीवरिंग अ बी इंस्टेड ऑफ ए. सो अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे देन इट्स अ बिग बिग प्रॉब्लम. सो आई थिंक यू हैव अ गुड फ्यूचर. ठीक है, आई एम श्योर टेक्निकली आप उतने ही साउंड हो गए जितने आपके ये सब बैचमेट्स हैं, बट ऑलवेज आस्क क्वेश्चन इफ यू डोंट हैव एन आंसर. ठीक है, फिर आप बोल सकते हो सॉरी सर आई हैव नॉट वर्कड ऑन दिस टेक्नोलॉजी. जैसे सेल्सफोर्स था, मैंने कहा मैं ऑफर दूंगा आप ले लोगे, आपने कहा येस. आप अगर नहीं क्लियर था तो यू शुड हैव आस्क्ड सर आई वुड लव टू, मुझे तो क्या है मेटाक्यूब में काम करना है या आपके साथ काम करना है, बट इफ़ यू कैन जस्ट गिव मी समथिंग सेल्सफोर्स, इज इट क्लाउड बेस्ड, इज इट समथिंग एल्स, इसमें एआई होता है क्या, ऐसे 2-3 चीज़ें, तो मुझे लगेगा एटलीस्ट यू आर इंक्विजिटिव. आपको आता कुछ नहीं है बट यू आर इंक्विजिटिव, यू वांट टू आस्क क्वेश्चंस. तो ये मुझे आइडिया देगा कि यू वांट टू लर्न. बाकी तो मैं आपसे 4 प्रोग्राम्स कागज़ पे बनवाऊंगा एंड आई गेट टू नो
आपका कैसे क्या चीज़ है. एंड ऑल्सो गाइज थोड़ा सा अपना एप्टीट्यूड को स्ट्रॉन्ग करें. कई बार इंटरव्यूअर्स बिकॉज यू आर फ्रेशर्स ज़रूरी नहीं है आपको प्रोग्राम्स लिखने को कहा जाए. So I can give you an aptitude problem. I can give you, let's say, a problem which requires a lot of reasoning. Why this? Why not this? क्योंकि entire IT, चाहे कोई भी फील्ड आप उठा लो, AI से ले लो, चाहे C लैंग्वेज ले लो, it is always like why this, why not this. तभी तो हमारे पास कमांड और स्टेटमेंट्स होते हैं. इफ होता है, फॉर होता है, वाइल होता है. ये सब हमारी लॉजिकल रीजनिंग और लॉजिकल थिंकिंग को बनाते हैं. टू राइट अ लूप you should be able to think logically. फिर उस लूप को अगर आप रिकर्शन में कन्वर्ट कर रहे हो, यू हैव टू बी मोर लॉजिकल. फाइन. अगर आप लॉजिकल सोच ही नहीं पा रहे हो कि मेरा लूप कहाँ स्टार्ट होगा, कहाँ एंड होगा, कौन सा स्टेटमेंट लूप के बाहर होगा, कौन सा लूप के अंदर होगा. हमने कितनी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स की होंगी जहाँ पे यार प्रोग्राम तो इनफाइनाइट हो गया, भाई आपने रिटर्न को लूप के अंदर नहीं डाला है, या लूप आपका एंड ही नहीं हो रहा है. ये प्रॉब्लम सबने फेस की है. फाइन. दैट इज ऑल अबाउट लॉजिकल रीजनिंग एंड IT इज अबाउट लॉजिक्स. तो Yes. हमेशा ऑलवेज सी द ब्रॉडर पिक्चर. डोंट थिंक अबाउट IT एज अ पर्टिकुलर टूल. AI को टूल की तरह आप देख रहे हो. AI मैंने कर लिया, आई बिकेम अ मास्टर. यस, फॉर मॉडर्न जॉब्स ट्रू, कंपनियां आपको ले लेंगी, यू बिकम अ वेरी स्ट्रॉन्ग इन AI. बट मार्केट में वो कितने साल जाएगा एंड आप उस पर कितना नॉलेज गेन करते जाओगे, दैट बिकम्स वेरी वेरी क्रिटिकल फॉर यू. एंड फाइनली, विच इज़ नॉट अ वेरी स्मॉल टॉपिक, हमको लगता है बहुत सही है, ऑलवेज गो प्रॉपरली ड्रेस्ड. ठीक है. अगर दाढ़ी वाड़ी रखते हो आप लोग, बहुत लोग रखते हैं, इट शुड बी ट्रिम्ड. बहुत सिंपल चीज़ है. डोंट गो लाइक के हॉस्टल से उठे बिना शेव वेव किए, बिना नहाए धोए हम इंटरव्यू देने चले गए. बहुत लोग, नॉट एवरीवन बट बहुत इंटरव्यूअर्स, दे गेट लिटरली लाइक डिजेक्टेड. यार ये क्या है, इंटरव्यू देने आए हो, कैसे आए हो. जब भी आप जा रहे हो ऑलवेज ग्रीट. ठीक है, हेलो सर, वेलकम सर, समथिंग लाइक दैट. एक अच्छे नोट पे चीज़ें चालू होती है. इंटरव्यूअर्स ऑलवेज विल कम वेल ड्रेस्ड, क्योंकि हम इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, आप इंटरव्यू देने आ रहे हो. और अगर आप क्लीन शेव वगैरह रहते हो, आपका हेयर कॉम्ब है, मैं ये नहीं कहता बिजनेस ड्रेसेस पहनकर जाओ, बिजनेस ट्राउजर्स, बिजनेस शर्ट्स. जैसे ये आई हैं, शी कम्स इन अ परफेक्ट अटायर. दिस इज अ नॉर्मल स्टूडेंट ड्रेस. आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग हर टू बिकम अ बिजनेस प्रोफेशनल वुमन. बट आप आ रहे हो, आप आराम से ऊपर आएंगे, ये खड़ी रही, मैंने इनको बोला प्लीज सिट एंड ऑल दैट स्टफ. हैव दोज बेसिक एटिकेट्स, जो बेसिक मैनर्स होते हैं. ऑलवेज थिंक ये मेरे टीचर्स हैं, ये मेरे एल्डर्स हैं, ये मेरे जॉब गिवर्स हैं, राइट. अल्टीमेटली मुझे इनके साथ काम करना है, ये बिकेम अ मैनेजर. एटिकेट्स ऑलवेज हेल्प, ऑलवेज. आप अगर थोड़े से भी बिखरे हुए आओगे, हाँ ठीक है, मन में अगर आपका थॉट ही यही है, ये जॉब नहीं मिलेगी तो कोई और पकड़ लेंगे, अगर आप ऐसे लाइट मोड में आओगे, देन इट्स वेरी हार्ड फॉर यू टू फाइंड योर गुड जॉब्स. सो ऑलवेज गो वेल ड्रेस्ड उसमें. और जनरली जो जैसे TPOs होते हैं, जो लोग कॉलेज के अंदर कैंपसेस वगैरह करवाते हैं, दे ऑलवेज गिव दीज काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू यू. सो आप लोग तो लकी हो, आजकल के कॉलेजेस सब जगह पे TPOs होते हैं हु क्रिएट दीज अपॉर्चुनिटीज़. कैंपसेस हो रहे हैं, वो सारे कॉलेजेस से एसोसिएट रखते हैं, किन कंपनीज में हायरिंग हो रही है. वी नेवर गॉट दोज अपॉर्चुनिटीज़. सो हम लोगों ने ये सब लेसन्स हार्ड वे से सीखे हैं. वी गॉट रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ लेट से बाल बना के नहीं गया कोई जना. एग्जाम्पल, वो बाहर आ रहा है, यार तेरा क्यों नहीं हो रहा, उन्होंने मुझे कह दिया ऐसे बिखरे हुए बालों में इंटरव्यू देने आओगे. क्योंकि रिमेंबर, हमारे जो इंटरव्यूज़ लेते थे वो आज से और 50 साल पीछे के लोग थे, जिन्होंने पॉसिबली ब्रिटिश वाली चीज़ें देखी भी होंगी. वहाँ पता है कैसे इंटरव्यू देने जाते थे, सूट टाई एंड ऑल दैट. हमने मूवीज़ भी ऐसी देखी हैं. वो मूवीज़ में जब आदमी इंटरव्यू देने जाता था, वो टाई वाई लगा के फाइल लेके पूरा ऐसे जाता था. ठीक है, जिसके अंदर हमेशा एक जैक का लेटर लगा हुआ होता था, मैं उनको जानता हूँ, मैं उनको जानता हूँ. आजकल ये चलता नहीं है. सो इट्स ऑल एंड एवरीथिंग जस्ट अबाउट यू. आप कैसे हो, वॉट थिंग्स यू नो, आपका बाकी सब प्रेजेंटेबिलिटी कैसी है. एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ इन सब चीज़ों से मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका कम्युनिकेशन, योर जनरल स्पीकिंग. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट IT कम्युनिकेशन. आपका बेसिक कम्युनिकेशन, हाउ यू टॉक, हाउ यू प्रेजेंट, हाउ यू ग्रीट, हाउ यू स्पीक, सब चीज़ें कॉन्फिडेंटली, आई टू आई कॉन्टैक्ट्स. आप पूरे टाइम नीचे ही देख रहे हो, आपको आंसर्स नहीं मालूम है, सब कुछ बहुत नेगेटिव हो जाता है. तो अगर आप में से कोई इंग्लिश नहीं बोल पा रहा है, अनफॉर्चुनेटली IT इज़ ऑल अबाउट इंग्लिश, क्योंकि हमारा सारा IT वर्ल्ड इंडिया का इंग्लिश में चलता है. ठीक है. तो अगर आप में से किसी की इंग्लिश वीक है, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं, यू ऑलरेडी नो कि मेरी इंग्लिश वीक है. अब उसके बहुत सारे रीजंस हैं. आप गांव से पढ़ के आए थे, आपके फैमिली में हिंदी बैकग्राउंड है,
आपको हिंदी स्कूल में डाला गया, आपका पेरेंट्स का जो भी डिसीजन था, ये चीज़ें अब पास्ट हो चुकी है। इस चीज़ को लगातार पकड़ के बैठे रहोगे, 4 साल बाद भी यही बोलोगे कि सर मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता, मेरे पेरेंट्स ने मुझे हिंदी मीडियम में डाल दिया था। कब डाला था? आज से 20 साल पहले। आप 20 साल से क्या कर रहे हो? जब आपको मालूम है कि मुझे हिंदी मीडियम में डाल दिया गया और मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता, लाखों कोर्सेज हैं ऑनलाइन जहाँ पे आप जाकर अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। आप ट्राई कर सकते थे इंग्लिश बोलने का। उस चीज़ को पकड़ के मत बैठो, जो बीत गया सो बीत गया। आप कभी फेल हुए थे, इट वॉज अ हिस्ट्री। आज बताओ आज क्या हो? आज मैं टॉपर हूँ, बात खत्म। जैसे मैं कहता हूँ मैं मेडिकल में नहीं हुआ था, दैट वॉज एन हिस्ट्री। आज मैं क्या हूँ? ओके, आई एम अ सक्सेसफुल IT गाय। स्टॉप हो गया। अब मैं बैठता जिंदगी भर उस चीज़ का दुख मनाता रहूँ, ना वो कंप्लीट हो पाया, ना आज का कंप्लीट हो पाएगा। तो इंग्लिश नहीं आता, इट्स ओके, इट्स अ वेरी नॉर्मल प्रॉब्लम। आप एबनॉर्मल नहीं हो। इंडिया में 90% लोग अभी भी इंग्लिश नहीं बोल पा रहे होंगे, 80% नहीं बोल पाते होंगे। आप अगर बोल पा रहे हो तो आप तो टॉप 20% में हो। 150 करोड़ जनसंख्या में आप 20% में हो। थिंक लाइक अबाउट दैट। ठीक है, आपके पास एक ज़मीन है जो 1 करोड़ से ज़्यादा की है। इंडिया में 1% है जिनके पास 1 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉपर्टी है, सिर्फ 1%। आप तो उस 1% में हो। वाई यू थिंक के मेरे पास ज़मीन है लेकिन मेरे पास एक कार नहीं है या घर नहीं है? आप 1% ऑफ द एंटायर वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, एंटायर इंडियाज पॉपुलेशन। तो इंग्लिश सीख लो, कोई चैलेंज नहीं है। आती सबको है, फ्लुएंसी चाहिए। मैं इंग्लिश अच्छे से बोल सकता हूँ, बट अगेन आई एम यूजिंग माई नॉर्मल हिंदी लैंग्वेज आप लोगों से बात करने के लिए। इंडिया में तो हम यही करेंगे, बट द मोमेंट आप और मैं ऑफिस में होंगे, द मोमेंट आप और मैं कॉल के अंदर होंगे, कस्टमर भी होगा, वहाँ हिंदी हम बोल ही नहीं सकते। हम हिंदी में बात कर रहे हैं, यार आज तो इंडिया मैच जीत गया, ये हुआ। सडनली कस्टमर पॉप्स अप, हे माइक हाउ आर यू? जस्ट हिंदी गायब, इंग्लिश कम। एंड अगले 45 मिनट्स, 50 मिनट्स, 1 घंटा, जितना लंबा भी कॉल है, इट्स ऑल इंग्लिश। एज एन स्पीकर व्हेन आई गो टू स्टेजेस यूरोप में, वहाँ पे द मोमेंट आई जंप ऑन द स्टेज, नेक्स्ट 45 मिनट्स इट्स थॉरो इंग्लिश। क्योंकि वहाँ तो गारंटी है कि एक भी हिंदी का आदमी सामने नहीं बैठा है। अब मैं स्पेन में बोल रहा हूँ, मेरा एक्सेंट वैसे ही टिपिकल ब्रिटिश इंडियन एक्सेंट है। वहाँ पे आप स्पेनिश को बोल रहे हो, स्पेनिश का एक्सेंट हिंदी है, मतलब स्लो एक्सेंट है उनका। सो विपिन, नो नो, फर्स्ट यू टेल अस हाउ यू डिड दिस। अब आपको उन्हीं की पेस पे बात करनी है। द मोमेंट यू गो टू ब्रिटिश यूके, फ्लुएंट इंग्लिश। आप डच में जाएंगे, नेदरलैंड साइड, फ्लुएंट इंग्लिश। यू गो टू ईस्ट यूरोप, बुल्गारिया, लेट्स से बेलग्रेड एंड ऑल दीज कंट्रीज, उनका इंग्लिश बहुत टूटा हुआ इंग्लिश है। बट द पॉइंट इज, आप उनके गेस्ट हो, आप स्टेज पे बोल रहे हो, सो दे बिलीव कि जो आप बोलोगे वो टेक्निकली करेक्ट होगा और आपका कम्युनिकेशन उनको समझ में आएगा। तो आपको अपना इंग्लिश को भी स्पीड जो है आपकी बोलने की, वो आपको अकॉर्डिंगली ऊपर नीचे मॉड्यूलेट, जो हम वर्ड यूज़ करते हैं, मॉड्यूलेट करना होता है। अदरवाइज यू कैन नॉट सक्सीड, स्पेशली इन द IT वर्ल्ड। आज आप कंपनी पे जाओगे, मेरे पास 4 लोगों को US भेजने का ऑप्शन है, मेरे क्लाइंट बुला रहा है, मैं आप लोगों का वीज़ा करवाने करूँगा, आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती, अनफॉर्चुनेटली आप नहीं जा पाओगे। कस्टमर के ऑफिस में पूरे दिन इंग्लिश बोलनी है, दोस्तों से हिंदी में कर लोगे। फिर मॉल में जाओगे, आपको कुछ परचेज करना है, शाम को घर आके कुकिंग करनी है, फल सब्जी खरीदनी है, इंग्लिश ही बोलना पड़ेगा भाई। हिंदी बोल के कैसे आप फल सब्जी खरीद लाओगे? बेसिक तो बोलो। आई डोंट वांट यू टू बी अ शेक्सपियर। मैं आपको हायर भी कर रहा हूँ तो मुझे चेतन भगत हायर नहीं करना है, बट इतनी तो इंग्लिश बोलो कि कम से कम आप अपनी प्रॉब्लम, IT वाली प्रॉब्लम, कस्टमर को समझा पाओ, कस्टमर की बात समझ पाओ, जो समझ पाओ उसको लिख पाओ, और जो लिख पाओ उसको इम्प्लीमेंट कर पाओ कोडिंग में। कस्टमर इंग्लिश बोल रहा है, आप हिंदी बोल रहे हो, हाउ यू थिंक कि आप सॉल्यूशन निकाल पाएंगे? दैट्स अ बिग बिग थिंग। सो फॉर मी ये सारा कॉम्बिनेशन अगर है, प्लस योर कॉन्सेप्ट्स, आई थिंक यू आर अ वेरी गुड गाय फॉर माई टीम। बाकी मैं आपको ट्रेन कर दूंगा। Okay, thank you. So, since we have a very short span of time, so thank you, Kanika, for joining us. सॉरी। So, as we are concluding the Oh, shit. session now, ये कहाँ से लाए फोटो? okay. So, ठीक है। हमारे पास Perks of going to conferences. Okay. ओके सो ऐसी और भी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें थी, बट सिंस वी हैव अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम तो हमें अब कंक्लूड करना पड़ेगा. सो विपिन, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन मेंटरशिप? As I said, if I can find a good person, I can mentor them, right? Mentorship is very, very critical. Again,
एवरीवन रिक्वायर्स अ कोच। और आई थिंक पास्ट के अंदर भी आप लोगों के कॉन्फ्रेंस में, कोड अप शो में, ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स आया, आई हर्ड दैट। मेरे व्यूज़ काफ़ी मिलते जुलते हैं। स्टिल आई कैन ऐड वन और टू मोर थिंग्स। एवरीवन नीड्स अ कोच। अभी रिसेंटली देखा होगा, विराट कोहली ने अपने कोच के पैर छुए जिस दिन पाकिस्तान को मैच हराया था। विराट कोहली को क्या ज़रूरत है स्टिल अपने कोच का नाम भी याद रखने की? Why he needs that? He still needs a coach, do you think? सचिन तेंदुलकर के कोच सब जानते हैं, रमाकांत आचरेकर, ठीक है, उनकी डेथ हुई एंड सब हुआ, सचिन वाज ऑलवेज देयर। व्हाई यू नीड अ कोच? व्हाई यू नीड टीचर्स? कोचेज आर टीचर्स। अब तो यूट्यूब है, आप यूट्यूब पे जाके पढ़ लो। स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं, क्योंकि मेरी वाइफ खुद प्रोफेसर है, स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं कि सर और मैम तो वही चीज़ें आकर पढ़ा देते हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल है। सो देन व्हाई यू नीड टीचर्स? द कोचेज आर देयर टू मेंटोर यू। घोड़ा भाग सकता है ना, स्टिल देयर इज अ जॉकी ऑन दैट। व्हाई? वो उसको मारने के लिए नहीं। डोंट थिंक कि वो उसको मारेगा तो घोड़ा और तेज भागेगा। घोड़ा भाग रहा है To guide the टू horse. गाइड। आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है। दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट, दैट इज योर एंडिंग पॉइंट, द एम, द गोल। और स्टार्टिंग पॉइंट से गोल तक जाने में देयर आर थाउजेंड्स ऑफ वेज। भटकने के भी रास्ते होते हैं, शॉर्टकट्स भी होते हैं। द कोच ऑलवेज इंश्योर्स दैट यू ऑलवेज टेक द करेक्ट पाथ। और अगर वो लंबा रास्ता है, यू आर नॉट एबल टू रीच, आपको लग रहा है यार आई एम लॉस्ट, कोच इज ऑलवेज देयर टू शो द लाइट कि नहीं, यू आर नॉट लॉस्ट। आप ये जो सीख रहे हो, दिस इज अ हार्ड वे, यू आर, एंड देन यू, ही गिव्स यू एग्जांपल्स एंड अदर स्टफ कि जब तुम फाइनली वहाँ पहुँचोगे देन यू रियलाइज। हर चीज़ के लिए कोच है। अगर मैं मेरा पर्सनल एग्जांपल भी दूँ, ये जो एक्सीडेंट मेरा हुआ है, अभी मेरे इस हैंड में फिजियो चल रहा है, 6 मंथ्स, ठीक है। डॉक्टर्स कहते हैं नर्व्स होती हैं, ऑटो रिपेयर होती है, एक दिन में 1 मिलीमीटर या 2 मिलीमीटर की रेंज पे नर्व रिपेयर होती है, राइट। वाई आई नीड अ फिजियो? मैं आराम से 6 महीने छुट्टी लेके घर बैठ जाता हूँ, नर्व रिपेयर हो जाएगी, हाथ मेरा परफेक्टली चलने लग जाएगा। फिजियो क्यों चाहिए? सो राइट नाउ फिजियो इज अ लाइक अ कोच फॉर मी, इज लाइक अ मेंटोर फॉर मी। वो कहते हैं नर्व्स तो ठीक हो रही हैं, 6 महीने तुम हाथ को हिलाओगे नहीं, तुम्हारा हाथ ऐसे है तो ऐसे रहेगा, ऐसे है तो ऐसे रहेगा, तुम्हारे जॉइंट्स जकड़ जाएंगे। जब नर्व्स ठीक हो जाएगी और आप सोचोगे एल्बो मोड़ लूँ या रिस्ट को ऐसे ऐसे मोड़ लूँ, वो होना बंद हो जाएंगे। फिर हम रिस्ट को मोड़ेंगे तो पता लगा नर्व पे काम नहीं हो रहा है। सो हु इज रेडी टू गिव मी करेक्ट गाइडेंस? दैट गाइडेंस कम्स फ्रॉम योर मेंटोर्स, योर कोचेस। और मेंटोर ऐसा होना चाहिए, यू शुड बी एबल टू आस्क वॉट एवर यू वॉन्ट। 4 साल हो गए सर, मैं आपसे बात करनी है, हाँ बताओ। एंड पीपल हैव एक्चुअली कम टू मी फॉर दीज थिंग्स। सर मैं जॉब चेंज करना चाहता हूँ। अब एज अ मेंटोर अगर आप ये बोलते हो, क्या कर रहे हो, पागल हो गया तुम, दूसरी जॉब में चले गए, मेटाक्यूब इज द बेस्ट, ये गलत मेंटोरशिप है। और अगर आप ये कहते हो तेरे को तो हर हाल में जाना चाहिए, मैं तो 2 साल से बोल रहा हूँ, ये भी गलत मेंटोरशिप है। मेंटोरशिप ये होना चाहिए फर्स्ट, व्हाई यू वांट टू लीव, व्हाट इज योर सोल रीजन। पैसे के लिए जाना है, विदेश ट्रैवल करना है इसलिए जाना है, नई टेक्नोलॉजी में जाना है, यू आर नॉट हैप्पी विद जयपुर, व्हाट इज द रियल प्रॉब्लम। फिर उस रियल प्रॉब्लम पे गिव हिम अ रियल सॉल्यूशन। जैसे अगर वो कहता है मेरा पैकेज ये है और मेरे को तो उस पैकेज पे होना चाहिए था, यस आप इसलिए नहीं हो बिकॉज यू आर नॉट डूइंग दीज थिंग्स ABCDE। अगर आप ये करते हो, योर नेक्स्ट अप्रेजल कैन बी दिस। आपको वर्ल्ड ट्रैवल करना है तो किसने रोका है? आप मेटा क्यूब से भी जा सकते हो, बट डू दिस थिंग्स। या फिर अरे यार अच्छा ऐसा था बॉस, इन मेटा क्यूब में तो वर्ल्ड ट्रैवल का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, मेरे को 20 साल हो गए, मैं आज तक नहीं गया, तुमको कहाँ से अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हमारा तो सारा काम ही जयपुर में, दुनिया में और कहीं काम ही नहीं है। लेट्स से एज एन एग्जांपल बता रहा हूँ मैं। तो अगर तुम्हारा यही ड्रीम है, और फिर जाना क्यों है, घूम के आ जाओ, आप अच्छा कमा रहे हो, एक ट्रैवल करके आ जाओ, 2 ट्रैवल कर लो। नहीं सर मेरे को तो रहना ही बाहर है, फिर तो देन यू हैव टू गो टू इन्फोसिस, TCS, विप्रो, क्योंकि दे हैव ऑफिसेस आउटसाइड। ना तो ज़बरदस्ती रोको, ना ज़बरदस्ती उसको पुश आउट कर दो। मेंटोर वो है जो सही गाइडेंस दे फॉर द बेनिफिट ऑफ द गाय। आप अपना पर्सनल बेनिफिट अगर देख रहे हो देन यू आर नॉट मेंटोर। तो आपको सामने वाले को सचिन बनाना है या विराट कोहली बनाना है या कोई और बनाना है, आपको उससे खुद को कुछ नहीं चाहिए। मैं खुश हूँ मेरी जयपुर की जॉब में, लेकिन अगर आपके बाहर जाने से आपका कैरियर बनता है, व्हाई आई एम स्टॉपिंग यू, हु एम आई एक्चुअली टू स्टॉप यू। सामने वाला बड़े मन से, बड़े रिस्पेक्ट से आपको मेंटोर मान के आपके पास आया, रीपे द रिस्पेक्ट बैक। उसको ऐसा गाइडेंस दो जो उसके लिए बेनिफिशियल हो। और अगर आप गाइड नहीं कर पा रहे हो देन गाइड हिम टू समवन एल्स हु कैन गाइड हिम। आपके पास आंसर नहीं है, डोंट से यार मेरे को नहीं आता, किसी और के पास भेजो, एंड दैट्स व्हाई ही इज कमिंग टू यू। विराट कोहली का भी रिसेंट एग्जांपल है, व्हेन ही वाज कॉन्स्टेंटली फेलिंग ही वेंट टू हिज कोच कि मैं लगातार फेल हो रहा हूँ, व्हाट आई एम डूइंग रॉन्ग।
तो उन्होंने कहा शायद छोटा सा, बैट को तुम ऐसे रखते हो, बैट को आधा इंच ऐसे कर लो, बॉल को लेट तक देखो, बॉल को लास्ट मिनट पे क्लिक हिट करो, एंड अगेन ही स्टार्टेड स्कोरिंग रन्स। खेल तो विराट ही रहा है ना, कोच खेलने नहीं आ रहे, मेंटोर खेलने नहीं आ रहे, ही इज नॉट इवन इन द स्टेडियम, वो बाहर से बता नहीं रहा है कि ये बॉल आएगी, अच्छा मैं बताता हूँ कैसे खेलना है, बॉल के पास खेलना है, बॉल के पास इतना टाइम नहीं है, वो तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बॉल निकल जाएगी, हिट कर जाएंगे आप। मेंटोर इज समवन हु गाइड्स यू, इसलिए मेंटोरशिप इज Very much needed. मैंडेटरी। Okay. एंड इट्स अप टू यू टू फाइंड द करेक्ट मेंटोर, चाहे आपके स्कूल के टीचर हो, चाहे कॉलेज के टीचर हो, चाहे फ्रेंड्स हो, एनीवन कैन बी अ मेंटोर। Okay, so here we are ending the session.